Hello champions. In the last lecture of modern history, we were discussing about the dual system of governance, which was came into effect after the Battle of Buxar, and the Battle of Buxar was fought on 22nd October of 1764. And the first question that what is the dual system of governance and who introduced the dual system of governance and why dual system of governance was introduced and what were the impacts of dual system of governance and where it was introduced firstly in India. These all are the questions which we will cover in this lecture. आधुनिक इतिहास की सीरीज में हमने जो लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी द्वैध शासन पद्धति जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। तो कब ये पद्धति इंट्रोड्यूस होती है, कौन इस द्वैध शासन पद्धति को इंट्रोड्यूस करता है, कहाँ ये द्वैध शासन पद्धति इंट्रोड्यूस होती है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारे अभी तक के लेक्चर्स अच्छे लगे हैं और इस लेक्चर में आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप पहली बार हैं तो आपने इसके पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पीछे के लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जुड़ाव में मिले। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है। तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये आपका है कि जब कभी भी शासन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और उसको अलग अलग लोग उस पर शासन करें, उसका जो गवर्नेंस है वो अलग अलग लोग करें, तो उसको हम बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया है बंगाल में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? बंगाल में। कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1765 में इंट्रोड्यूस किया गया है और कब तक रहा है? 1772 तक। और किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया है आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने इंट्रोड्यूस किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने इंट्रोड्यूस किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। किसको? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी द्वैध शासन पद्धति को इन्होंने लाया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आपके आंसर मिल गए। पहला, द्वैध शासन पद्धति कब आई? 1765 में। कहाँ आई? तो वो आती है आपके बंगाल में। और तीसरा, कौन लाया? तो रॉबर्ट क्लाइव लाए। और चौथा, अगर हम बात करें कि ये कब हटाई गई, तो ये 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हटाई गई। कब हटाई गई? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ये हटाई गई थी। तो ये हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब हम समझते हैं पूरी तरीके से द्वैध शासन को। ठीक है। सो the dual system of governance was introduced by Robert Clive. The first question, who introduced? So the answer will be Robert Clive. When it was introduced? So it was introduced in 1765 and it was removed in 1772 at the tenure of Warren Hastings, and after this it was introduced in Bengal. These all are the 3 questions regarding this topic. Now we will discuss what is the dual system of governance. So when we see dual system of governance, so we will discuss about the 2 functions. The governance of Bengal was divided into 2 functions. The first function was named as Nizamat function and the second function was known as Diwani function. What are the Nizamat functions? So the Nizamat functions are categorized into 2 categories. The first one is defense and foreign affairs and the second one is civil administration. These are the Nizamat functions. What are the Nizamat functions? Defense and foreign affairs, civil and civil administration. These are the Nizamat function. And when we discuss about Diwani function, so the Diwani function is the revenue collection system. The system in which we collect the revenue from the state is known as revenue collection or Diwani function. So why we call dual system of governance? Just because the Nizamat functions are governed by Nawab of Bengal and the Diwani functions are governed by company. So we can clearly see that the revenue collection was in the hand of company. So all the revenue collection was in hand of company and all the responsibilities like defense, like foreign affairs, like civil administration, these all were under the Nawab of Bengal. So all the powers were in the hand of company and all the duties, all the responsibilities were under the Nawab of Bengal. And this system create the drain of wealth from the Bengal.
तो क्या होता है द्वैध शासन? द्वैध शासन जो है आपका बंगाल में, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया इसको समझने के लिए कि क्या था द्वैध शासन। इसके दो भाग हैं, दो फंक्शंस को, दो कार्यों को हम देखते हैं। तो जो आपका पहला फंक्शन है वो है निजामत फंक्शन और दूसरा आपका फंक्शन है दीवानी फंक्शन। निजामत फंक्शन को हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक आपका आता है रक्षा और विदेशी मामले और दूसरा आपका होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी का जो वहाँ का आपका प्रशासन था। ये सारा जो था इसको हम बोलते हैं निजामत फंक्शन। और दीवानी फंक्शन का मतलब होता है राजस्व कर वसूलना जो होता है, जो राजस्व कर वसूलते थे, जो राजस्व वसूलते थे उसको हम बोलते थे दीवानी फंक्शन। तो होता क्या है कि जो राजस्व वसूलने का कार्य है, क्योंकि देखिए जब आप समझें, अगर आप इस समय भारत में हैं तो भारत के गवर्नेंस की अगर हम बात करें, भारत के शासन की अगर बात करें, तो आपसे टैक्स कौन लेता है, राजस्व कौन वसूलता है? वो भी आपकी भारत सरकार वसूलती है, ठीक है। और सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? रक्षा, आपका रक्षा की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, विदेशी मामलों की जिम्मेदारी, ये भी आपकी भारत की सरकार की है। यानी कि जो शासन है वो एक ही जगह से चल रहा है, इसलिए यहाँ पे द्वैध शासन नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे द्वैध शासन है। क्यों? क्योंकि राजस्व वसूलने का अलग सिस्टम था और जो आपके निजामत फंक्शंस थे जिसमें आपका रक्षा, विदेशी मामले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन आता है, वो अलग हाथ में था। तो ये था आपका नवाब ऑफ बंगाल के हाथ में और रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि दीवानी फंक्शन आपका था कंपनी के हाथ में। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। और जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो यहीं से शुरू होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो पैसा है उसकी निकासी, उसको निचोड़ लेते हैं अंग्रेज यहीं से, इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये हो गया आपका गवर्नेंस ऑफ बंगाल क्या होता है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ बंगाल क्या था, हमने इसको समझा। इसको इंट्रोड्यूस जिसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया 1765 में, बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसमें एक जो और चीज है हम उसको समझ लेते हैं कि कैसे दीवानी फंक्शंस को जो कंपनी थी वो कंट्रोल कर रही थी। तो कंपनी ने क्या किया कि देखिए, अब दीवानी फंक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि कर वसूलने की बात कर रहे हैं, तो उनको अधिकारी चाहिए जो कर वसूले। तो इसके लिए जो सुप्रीम ऑफिसर हुआ करता था उसको हम बोलते थे नायब दीवान। क्या बोलते थे? नायब दीवान। नायब दीवान अगर हम बात करें तो दो नायब दीवान उन्होंने इलेक्ट किए, उन्होंने अपॉइंट किए। एक तो आपका था बिहार के लिए और एक आपके थे बंगाल के लिए। तो जब हम बिहार की बात करते हैं और बंगाल की बात करते हैं तो दोनों के जो नायब दीवान हुआ करते थे वो अलग अलग थे। तो बिहार के लिए जो नायब दीवान थे उनका नाम था राजा सिताब राय। राजा सिताब रॉय, ये आपके थे बिहार के नायब दीवान। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा। और बंगाल की अगर हम बात करें तो ये थे मोहम्मद रिजा खान। कौन थे? मोहम्मद रिजा खान। मोहम्मद रजा खान भी आप इनको हम बोलते हैं बंगाल के नायब दीवान को, ठीक है। सो द टू नायब दीवान्स वर अपॉइंटेड फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कंपनी। द first Nayab Diwan was Raja Sitab Rai, who was the Nayab Diwan of Bihar, and the second Nayab Diwan was Muhammad Raza Khan, who was appointed as the Nayab Diwan of Bengal. So the company appointed these two Nayab Diwans for the revenue collection. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे नायब दीवान जो ये चुने गए, इनके थ्रू ही उन्होंने दीवानी फंक्शंस को अपने हाथ में रखा। अब इनको क्या कहा गया कि भैया जितना हो सके उतना आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रेवेन्यू कलेक्ट यहाँ पे करना होगा, ये चीज कही गई इसमें। अब जब इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो इसकी वजह से क्या होगा? फार्मर्स पे दबाव पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी जो भूमि है उसकी उसका जो उपजाऊपन है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कर ज्यादा वसूलेंगे, कर के रूप में उनसे ज्यादा अनाज लेंगे तो उन्हें अपने लिए अनाज ज्यादा उगाना पड़ेगा, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम कृत्रिम चीजों की प्रयोग करेंगे, जिससे कि वहां की जो उपजाऊ भूमि है उसको भी नुकसान पहुंचता है, उसकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचता है। तो यहां तक ये हमने समझा। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट इसके क्या पड़ते हैं। So after appointing these two Nayab Diwans, company
instructed them that you have to collect the maximum revenue from your land, and if you want to collect the maximum revenue, then you will collect the more grains, more things from the land, and it will affect the farmers and the fertility of the lands too. So these are the problems regarding dual system of governance. Now we will discuss the impact of the governance, dual system of governance. तो जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली इसका सीधा सा आंसर है कि फार्मर्स पे दबाव पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, भूमि जो उपजाऊ थी वो उतनी उपजाऊ नहीं रह गई, और इसी की वजह से 1770s के जो 1770 में जो फेमाइन आते हैं, यानी कि जो अकाल पड़ता है, वो उसका भी कारण यही डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। जो अकाल पड़ता है 1770 का बंगाल का, वो भी इन्हीं फंक्शंस का एक परिणाम था, वो ही इनका इम्पैक्ट था। अब हम बात करते हैं कि ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। ठीक है, सो इफ वी सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, so you can clearly see that due to this function, due to this form of revenue collection, the farmers and the land was in disaster, because the collection of revenue was at its extreme peak. Due to this, the famine of 1770s was happened. We can clearly say that the famine of 1770s regarding Bengal were due to the revenue collection system of Bengal in this governance system. Now we will discuss why the dual system of governance was introduced. Dual system of governance यानी कि द्वैध शासन पद्धति क्यों लाई गई, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं इसका, जब हम देख रहे हैं कि ये क्यों लाई गई, ठीक है, रीजन फॉर दिस। इसके अगर हम रीजन की बात करें, रीजंस, तो सबसे पहला तो था कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, powers without responsibility. The first reason for this introduction of dual system of governance, that powers without responsibility. जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि उनको शक्ति तो मिल जाए लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी ना हो, इसके लिए उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद दूसरा था पपेट गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो सरकार हो वो उनकी कठपुतली के रूप में रहे। तो अब उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू तो अपने हाथ में रखा, अगर रेवेन्यू उनको देते तो वो जाहिर सी बात है वो पपेट, वो कठपुतली इनकी नहीं रहते। इसके दो फायदे हुए कि पहले तो वो उनकी कठपुतली बन के रहे, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जब उनके हाथ में जो आपके नेटिव रूलर्स हैं, जो आपके बंगाल के नवाब हैं या जो भी आपके लोकल राजा हैं, जब उनके हाथ में रेवेन्यू नहीं होगा, राजस्व नहीं होगा, तो वो युद्ध करने की शक्ति भी नहीं रखेंगे, क्योंकि युद्ध के लिए भी हमको पैसा चाहिए होता है, और जब हमारे पास राजस्व है ही नहीं युद्ध करने के लिए, तो फिर हम किसी भी कीमत पे वहां पे हम कलेक्ट होकर लड़ाई नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात पपेट गवर्नमेंट की यही थी कि भाई रेवेन्यू हमने अपने हाथ में रख लिया, अब जो लोकल रूलर्स हैं, जो लोकल प्रिंस हैं, वो आपस में मिल के हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज तो यही थी। और उसके बाद सबसे तीसरा पॉइंट ये था कि अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो ब्रिटिश संसद थी वो इंटरफेयर ना करे, इसके लिए इन्होंने जो है सारी चीजें अपने हाथ में ना लेके कुछ चीजें उनको भी दे दी, क्योंकि अगर कहीं हम कंप्लीट अगर सारे फंक्शंस हम अपने हाथ में ले लेते, दीवानी भी और निजामत भी, तो ब्रिटिश तो ये हमारा, ये टेरिटरी हमारी हो जाती कंप्लीटली, और फिर इसके लिए हम जवाबदेह होते, हम आंसरेबल होते ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो फॉरेन अफेयर्स थे, जो डिफेंस था, वो अपने हाथ में नहीं लिया। केवल केवल क्या लिया, तो अपने हाथ में उन्होंने राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि दीवानी फंक्शंस को अपने हाथ में लिया। तो ये थे रीजन इसको इंट्रोड्यूस करने के, और इसका हमने इम्पैक्ट भी यहाँ पे समझा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था, नायब दीवान कौन था, ये सारी चीजें हमने देख ली।
और इसके जब हम देखते हैं इम्पैक्ट में, तो हमने आज समझा कि कैसे फेमाइन आती है। और अगर हम इसके इम्पैक्ट में देखें तो इट लेड टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल। बंगाल के प्रशासन का जो ब्रेकडाउन होता है, जो वहाँ के कानून का जो ब्रेकडाउन होता है, वो इसकी वजह से हो जाता है। किसके? द्वैध शासन पद्धति की वजह से। और जो हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज थी और जो हमारे भारतीय कामगार थे, उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुँचता है। इट ruined द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड स्किल ऑफ इंडियन आर्टिसंस। दिस हैड लेड टू द इमरजेंस ऑफ इंडियंस ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसी को हम कहते हैं, यहीं से शुरुआत होती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, यानी पैसे की निकासी की। जो पैसे की निकासी का सिद्धांत जो आपको पढ़ने को मिलेगा, जिन्होंने जो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो उस सिद्धांत में जब हम देखते हैं तो यहीं से आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी पैसे की निकासी जो है वो शुरुआत होती है। तो ये था आपका कंप्लीट डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, मैसूर विजय के बारे में। और हम आगे और भी जो कैसे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया पूरे भारत पे धीरे धीरे, हम उन सभी विजयों को उनकी आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर ये चीज़ें आपको जो भी हमने पढ़ाया है आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और भी लोगों से शेयर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।